Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Arslan from Civil Hospital, working as a senior registrar there. So the topic of today's discussion is perioperative delirium. We would be comparing which is the best thing, GA or sedation for the non-operating room procedures. So to start with, so what is perioperative delirium? It is the confused state after anesthesia. So it should be dealt very vigilantly in the entire perioperative period, as it is one of the major cause of preventable morbidity and mortality. And delirium is a neuroinflammatory condition characterized by inattention and fluctuating consciousness level. So overall NORA procedures has an incidence of 2 to 3% of postoperative delirium. But when we take it to the high-risk patient, it is 50 to 70% in elderly population. And we can diagnose it by this DSM-5 criteria, that is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illness. And it is a criteria given by the American Geriatric Society. This criteria describes some key components, and all of them are clinical, and no any investigation is needed to diagnose delirium. And it can occur anywhere from between 10 minutes after the anesthesia till the discharge of hospital. But in few articles it is about up to 30 days post anesthesia patient can develop delirium. And occurrence of delirium is associated with raised morbidity, raised mortality, and increased healthcare resource expenditures. And delirium can be further categorized as hyperactive, hypoactive, or mixed types. So don't get confused with this big diagram. It is just like when we have abnormal tryptophan metabolism, that is, we will be having decreased serotonin, then the delirium will be hyperactive delirium, and when we have increased serotonin, it will be hyperactive delirium. And similarly, with the inflammatory processes, that is sepsis or some infections, these mediators will cause endothelial damage, thrombin formation, and microvascular compromise, which will cause delirium. And cerebral ischemia also causes delirium. So whenever we are there for NORA procedures, non-operating room anesthesia जब हम दे रहे होते हैं, endoscopy, colonoscopy, cath lab, anywhere you are giving non-operating room anesthesia, आपको saturation को maintain करना है. Otherwise, patient has a high chance of cerebral ischemia, and this will cause delirium. And all these mechanisms that are on the left side, endorphin, glutamate, histamine, and GABA, also causes delirium, but the mechanism is still unknown till date. And lastly is that increased dopamine and noradrenaline in the plasma will cause the increased neurotransmitters, will cause increased neuronal excitability, and this will also lead to delirium. So what are the symptoms of delirium? That is the one with the star are of hyperactive delirium, and the one with the no star or steric mark are the signs and symptoms of the hyperactive delirium. So it is change in the level of arousiness, decreased arousal, delayed awakening, abrupt changes in the cognitive function after anesthesia, and quick changes in the emotions, neuroperceptual disturbances, and all the things like sleep-wake cycle changes in the elderly patient. These are the causes, these are signs and symptoms of delirium. So what is actually there? There are two things, predisposing factors and precipitating factors. If the patient is highly vulnerable, means for example, if we take it that patient is of older age, then the patient is highly vulnerable. Only a little noxious stimulus will be causing the delirium in this patient. And if the patient is of lower age, that is low vulnerability है अगर उनकी, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा noxious stimulus हम देंगे. Higher noxious stimulus will be the reason for the delirium. So what are the predisposing factor like age, cognitive impairment, complex comorbidities of the patient? These are the predisposing factors. अब आपको पता है एक patient है, उसकी hemoglobin 5 है, ठीक है? For example, so it's a complex comorbidity that is developed anemia, and the patient gets into a non-operating room anesthesia में आप जाते हैं, इनकी desaturation हो रही है, ठीक है? Obviously पहले ही hemoglobin कम था, और अब क्या नाम है, carrying capacity कम है, and oxygen is not getting into the patient's brain.
तो उससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सर्जरी पेशेंट विल बी कॉम्बैटिव, लड़ रहा होगा, झगड़ रहा होगा, फाइट कर रहा होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा. तो फॉर एग्जांपल एनीमिया अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत डिसैचुरेशन पेशेंट जो है वो टॉलरेट करेगा. इन दिस वे हाईली वुल्नरेबिलिटी अगर है, हाई वुल्नरेबिलिटी इज़ देयर, तो फिर बहुत छोटा सा नॉक्सिस, कुछ थोड़ी देर का डिसैचुरेशन अगर हुआ है तो इट इज़ इनफ टू कॉज अ डिलीरियम इन द पेशेंट ऑफ 70 ईयर्स ओल्ड एज. हेमोग्लोबिन भी कम है, कार्डियक भी इशूज़ हैं. और अगर एक यंग फिट पेशेंट है तो वो छोटे मोटे आप देखोगे डिसैचुरेशन को अच्छे से टॉलरेट कर लेता है. ठीक है. एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स ये होते हैं स्लीप डिसरप्शन, इमरजेंसी सर्जरी, पुअरली कंट्रोल पेन और सिग्निफिकेंट इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस, देन इट विल बी द थिंग दैट वी नीड टू नो. तो अगर तो पेशेंट की कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो यू शुड अलाउ द पेशेंट टू वियर दैट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पेरी ऑपरेटिव पीरियड. इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग ग्लासेस आप उनको वो पहनाएंगे जो भी इसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है. ठीक है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेन कंट्रोल विद शेड्यूल एसिटामिनोफेन. ठीक है. सिंपल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स आपके अप्रोचेज होना चाहिए. ठीक है. लास्टली के पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा जो है NPO करके आया हुआ है तो यू शुड बी आस्किंग, नाउ द प्रोटोकॉल्स आ गए हैं कि सिप स्टिल सेंट, यू कैन अलाउ द पेशेंट टू हैव सिप ऑन हाफ आवरली बेसिस टिल द पेशेंट इज इन द OR in order to reduce that NPO margin. So these are the things you can do in a patient for non-pharmacologically you can prevent the delirium to occur in patient. So what we will be following: pre-operative anesthesia risk, peri-operative risk reduction, recognition and management of the established delirium, and then post-anesthesia and special care follow-up. So this was the article in the British Journal of Anesthesia which shows that peri-operative assessment, risk reduction and management in a patient with post-operative delirium. What does this article tell us? That what are the things which are effective in the prevention and occurrence of post-operative delirium. These are, if you are using NSAID, if you are using paracetamol in the patient, then 28 to 11% there are chances of reduced delirium. Use of Neuraxil anesthesia, use of dexmedetomidine. A meta-analysis has showed that 40% of post-operative delirium के अंदर reduction आया है. तो dexmedetomidine is the new thing that we can use in elderly population undergoing NORA procedures. And then pre-operative comprehensive geriatric assessment. These are all very good approaches, but the more marked one, the more pronounced one is the 40% reduction in post-operative delirium occurrence by use of dexmedetomidine. So these days we are using this thing with the propofol. And lastly, what are the things which are not अच्छा, you have to avoid benzodiazepine. आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कोलोनोस्कोपी कराने के लिए या एंडोस्कोपी कराने के लिए people are using midazolam along with propofol. So it is a cause of delirium as well as it increases the incidence of delirium. So this thing is very very more common in Pakistan. Even in civil hospital initial days पे जब हमारा Presidex नहीं था, we were using that benzodiazepine with the propofol in order to make our patient deeply sedated. So this should not be used because the studies are saying that a cohort with 40,000 and 1 million patients shows that the benzodiazepine and gabapentinoids are independent risk factors of the post-operative delirium. So this is a very very crucial thing. And the things which are of no difference, आप उनको यूज़ करें या ना करें, पेशेंट को डिलीरियम डेवलप होगा या नहीं होगा इस पर कोई असर नहीं पड़ता. दीज आर दैट यू यूज टीवा इंस्टेड ऑफ वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट, यू यूज इंट्राऑपरेटिव कीटामीन, एंड यू यूज डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अगर आप बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट द एजेंट इज देयर, देन द पेशेंट विल बी डिलीरियस इफ द रिस्क फैक्टर्स आर देयर एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग इट. लास्टली, ये जो लोग कहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल करें, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी दें, रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसफ्यूजन्स करें, अवॉइडिंग हाइपोथर्मिया करें, बट दीज आर being studied by the researchers that these are very low evidence, और जो evidence की जो quality होती है वो भी बहुत low evidence है कि these things really matters. अगर आप बिल्कुल सब चीज़ें ठीक करते हैं, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी देते हैं, बीपी सही कंट्रोल करते हैं, बट पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन और गाबापेंटेनॉइड देते हैं, सही है, तो पेशेंट का हाई चांस है कि वो डिलीरियस होगा. एंड लास्टली, ये जो चीज़ें हैं इनमें मैंने ये ऐड किया है कि व्हाट आर द थिंग वी कैन डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट. तो कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम दें और उसके बाद पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिवली या प्रोफिलैक्टिकली देना शुरू करें तो डिलीरियम ना हो.
तो द थिंग इज कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में बताया हमें कि 45% रिडक्शन होगा, यानी कि अगर एक पेशेंट की एंडोस्कोपी होनी है एंड द पेशेंट यूजेज अ हियरिंग एड, तो आप उसको अलाउ करें, डू नॉट पुल दैट हियरिंग एड अवे फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, बट इट विल हेल्प, 45% रिडक्शन होगा उनको, ठीक है। इसी तरह मेलेटोनिन, ये जो मेलेटोनिन है इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ दैट टायरोफेन, टायरोफेन से सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन से मेलेटोनिन बनता है, और अगर इसके लेवल एडिक्वेट हैं तो फिर डिलीरियम नहीं होगा। तो इसकी जो ये रेमेलिटन है, दिस इज़ अ एक्सोजेनस मेलेटोनिन, तो ये भी देने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आगे जाके डिलीरियम होने वाला है, हम पेशेंट को अभी से मेलेटोनिन देना शुरू करते हैं या रेमेलिटन देना शुरू करते हैं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। एंड लास्टली एंटी साइकोटिक्स, यूज़ ऑफ हाई डोज डेक्सामेथासोन, ये कार्डिक सर्जरीज में भी देखा गया था, बट पेशेंट डिलीरियस हुए, और बहुत हाई डोज डेक्सामेथासोन ये दे रहे हैं 100 मिलीग्राम, तो इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग कि उसके इफेक्ट क्या आएंगे पेशेंट के। डिलीरियम रिस्क तो कम हो रहा है बट 20% तक, बट 100 मिलीग्राम्स ऑफ डेक्सामेथासोन वर यूज इन दीज स्टडीज़, तो इट इज़ नॉट अ सेफ डोज, तो सब पे नहीं दे सकते। अच्छा, इसके साथ ही अब हम नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दैट इज़ एनेस्थेटिक्स प्रोसीजर परफॉर्म आउटसाइड द ऑपरेटिंग रूम एंड इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड इन द हेल्थ केयर। अब सारे पेशेंट्स को ये चाहिए कि बस हमारी जल्दी से सर्जरी हो, सेम डे सर्जरी हो, ऑपरेशन रूम के अगर बाहर भी कोई प्रोसीजर्स एनेस्थीसिया लेना भी पड़ रहा है तो वी शुड गो होम अर्ली, तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड these days, and unfamiliarity with the environment is one of the biggest challenge we have, ठीक है। anesthetists को क्या होता है, every now and then they are in the ORs, but when they leave the OR and go to a place जहाँ पे वो रोज़ नहीं जाते और उनको वहाँ anesthesia देना है, तो things can be challenging. What are the considerations? Limitation of the room, equipment may be lacking, unfamiliar environment, staff may be unfamiliar with the anesthetic procedure, exposure to the radiations. नोरा साइट्स हैव अ ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ ए से 3 to 5 पेशेंट्स कैटेगरी यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जस्ट लाइक वी गो इन द कैथ लैब और एंडोस्कोपी सूट्स। एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस शुड बी हेल्ड एट द सेम स्टैंडर्ड्स इन द ऑपरेटिंग रूम, लेकिन एनेस्थेटिक्स जो जा रहा है उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ एनेस्थीसिया OR जैसा ही मेंटेन करना है। दिस इज़ द बिग चैलेंज फॉर द एनेस्थेटिस्ट। ये कॉमन नोरा प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, MRI, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के लिए एनेस्थेटिस्ट को अपना OR छोड़ के बाहर जाके भी एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है, ठीक है, आउटसाइड द OR रूम। सो दिस वाज अ ब्राज़ीलियन जर्नल दैट आई केम अक्रॉस, इन्होंने इफेक्ट ऑफ डेक्समेटाडोमेटाइन को डिस्कस किया था इन नोरा प्रोसीजर्स इन एडल्ट। दिस वाज अ सिस्टमैटिक रिव्यू विद मेटा एनालिसिस एंड ये रिसेंट है, सितंबर-अक्टूबर 2023 के पब्लिश हुआ है उसके अंदर आर्टिकल में। सो द थिंग इज डेक्स इन द नोरा प्रोसीजर्स ने इन्होंने देखा कि इट वाज एसोसिएटेड विद द लोअर इंसिडेंस ऑफ एमनीजिया एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम एंड रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, but had a long time to recovery and more hemodynamic complications because dexmedetomidine creates hypotension and bradycardia whenever you use it. और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था रेमिमेजोल, इट्स अ न्यूअर ड्रग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, तो लोगों ने इसको भी चेक करा था इन ओल्ड एज पॉपुलेशन, तो रिजल्ट्स वर क्वाइट डिफरेंट। इन्होंने देखा कि पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम वॉज देयर, रेमिमेजोल से 15.6% हो रहा था एंड प्रोपोफोल ग्रुप से 12.4% हो रहा था। सो द जनरल एनेस्थीसिया विद रेमिमेजोल, अगर आप किसी पेशेंट को नोरा में ये सोच के दे रहे हैं कि हम इसको बेंजोडाइजेपिन देते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तो उसका जो है मतलब इशू ये है कि इट्स अगेन अ कॉजेटिव एजेंट, भले शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है बट ये डेलिरियम कॉज करेगा एंड वी डोंट हैव टू गिव इट, एंड इट वाज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम बिकॉज बेंजोडाइजेपिन तो है ना। अच्छा, लास्टली दिस इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू, इन्होंने देखा था इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया मेथड एंड एनेस्थेटिक्स ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम इन द elderly patient undergoing non-operative room anesthesia. This was again a systematic review and a huge network meta-analysis. अच्छा, इसके अब की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 डेटाबेसेस को इन्होंने चेक किया था, 23 RCTs और 7,500 पेशेंट्स को इन्होंने इसमें एनरोल किया था, एंड द अकरेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम विद डिफरेंट एनेस्थीसिया मेथड्स एंड एनेस्थेटिक्स स्टडी किया इन्होंने इसमें। And what they found was there was no any statistical difference between the anesthesia method, whatever you choose, GA or sedation. 23.3% of the elderly patient got the delirium post-operatively.
एंड डेक्समेडिटोमिडीन ने रिड्यूस किया डिलीरियम, ये इन सारी RCTs ने हमें शो किया। एविडेंस आपको जो है ना मतलब इनसफिशिएंट मिलेगा अगर आप भी इसको गो थ्रू करेंगे। मैं गो थ्रू इसको किया तो उसमें एविडेंस इज इनसफिशिएंट टू रिकमेंड द स्पेसिफिक एनेस्थेटिक टेक्निक। मतलब वी कैन नॉट लेबल एनी सिंगल प्लान ऑफ एनेस्थीसिया के हर पेशेंट को सेडेशन ही देना है। इट विल बी वेरिंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि GA देना या सेडेशन देना है। बट द डिलीरियम, पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम, ऐसा नहीं है कि इसको सेडेशन सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि इसको डिलीरियम होगा, या GA इसलिए नहीं दे रहे कि इसको डिलीरियम होगा। कोई एनेस्थीसिया टेक्निक किसी दूसरी एनेस्थीसिया टेक्निक से सुपीरियर नहीं है, ऑल हैव सेम इंसिडेंस। अच्छा, देयर इज लाइकलीहुड ऑफ डिलीरियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द सिलेक्शन ऑफ द, अच्छा आप टीवा दें या इनहेलेशन बेस्ड एनेस्थीसिया दें, इससे भी जनरल एनेस्थीसिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड द लाइकलीहुड ऑफ डिलीरियम विल बी सेम। एंड पेरी ऑपरेटिव बेंजोडाइजेपिन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिस्क ऑफ डिलीरियम को इंक्रीज़ करती है। एंड आपने अवॉइड करना है पेरी ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाबापेंटेनॉइड्स इन ओल्डर पेशेंट, ये भी रेस करते हैं डिलीरियम का इंसिडेंस। एंड ओपियोइड्स के अंदर अगर आप मेप्रिडिन यूज़ कर रहे हैं तो ये डिलीरियम प्रेसिपिटेट करता है, बट ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू कंट्रोल द पेशेंट पेन एज वेल, बिकॉज पेन इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डिलीरियम। सो इसमें फिर हम ये करेंगे कि इंडिविजुअलाइज जो डोज होता है, जो हम इनिशियली कैलकुलेट करते हैं कि 0.1 के हिसाब से, या जेरिएटिक पॉपुलेशन में आपने उससे थोड़ा कम ले लिया, मिलीग्राम से आपने नेल्बिफिन दे दिया, या कुछ और जो आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इनिशियल लेवल पे देंगे, फिर उसके शॉर्ट एलिकॉर्ड्स रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कीटामीन डिड नॉट प्रिवेंट और कॉज पेरी ऑपरेटिव डिलीरियम, तो इनको आप लास्ट मल्टी सेंटर ट्रायल्स हो चुके हैं। दो सिस्टम्स विच आर यूजिंग कीटामीन अलॉन्ग विद प्रोपोफोल, दे आर ऑल्सो गुड टू गो, एंड द सिस्टम्स विच आर यूजिंग प्रोपोफोल विद डेक्समेडिटोमिडीन, दे आर ऑल्सो गुड टू गो। एंड डाइफिनाइहाइड्रामाइन, मेटाक्लोप्रोमाइड एंड एंटीकोलिनर्जिक्स, ये इसको लाइक स्कोपोलामीन वगैरह, ये सब भी चीज़ें जो होती हैं, दे ऑल्सो इंक्रीजेज द डिलीरियम पोस्ट ऑपरेटिव, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। तो इसको हम मैं समराइज इस तरह करूँगा कि वॉट एवर यू चूज़ फॉर योर नोरा प्रोसीजर, जनरल एनेस्थीसिया या फिर सेडेशन, but you have to avoid benzodiazepine if possible, avoid all the precipitating agents which are possible। and अगर आपका पेशेंट एल्डरली है, वो किसी न किसी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से किसी असिस्ट डिवाइस पर है, तो ट्राई नॉट टू रिमूव दिस असिस्ट डिवाइस। और अगर आप उसको असिस्ट भी डिवाइस को भी रिमूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेयरिंग एड, ग्लासेस, तो इट शुड बी फॉर अ शॉर्ट एंड मिनिमल पीरियड, और उसके बाद उसको दोबारा वो दे दें, ठीक है, ताकि वो डिलीरियस ना हो जाए। तो दैट वाज ऑल फॉर माई साइड टुडे, एंड एनी क्वेश्चन विल बी